Ambassador of Goodwill, California, International Best Paper Award on HRD Practices. Samarpan Award Excellence in Empowering Women. She was awarded as Super Achiever Award for Women in HRD Research and Development for her 25 years of contribution in the World HRD Congress. Professor Rajeshwari received the Global Award for Women, Making the World a Better Place to Live in Thailand in June 2018. So far as research publications and articles in national and international journals are concerned, she has to her credit nearly 173 research publications, and so far as the book is concerned, she has authored a book, Innovations in HRD and Training, Excel Books 2014. Currently, she has written for 2 chapters on Indian women in leadership, published by Palgrave Macmillan, USA, and also the history of a large public sector bank in India, to be published by Sage Publication. She is also on the advisory editorial board of International Journal of HRD Practice Policy and Research, UK, Canada, and chief editor of Indian Journal of Training and Development. Professor Rajeshwari has been a board member, International Federation for Training and Development Organizations, and served as a member, Developing Countries Concerned Committee, IFTDO, representing UNO. She is working for development of women in leadership and diversity policies at a global level. She was also awarded by Women Economic Forum Global as the Exceptional Leader of Excellence at IIM Kozhikode on 23rd August 2009. So she is it is a vast compendium of information on Dr. Rajeshwari. And let me, in fact, without taking any further time, most honorably request Professor Rajeshwari to speak on this relevant and contemporary topic, resilience, developing resilience in crisis time. This is the need of the hour. So now, in fact, the entire floor is that of Professor Rajeshwari. So she would continue with her talk, with her illuminating talk, and at the end of the talk, if the audience has some relevant questions, of course, one by one, she would try to answer those questions. Thank you, madam. Thank you, audience. Thank you. Please listen to Professor Rajesh. Good afternoon, everyone. It's a very big, proud privilege to be associated with you all on this virtual mode. And I'm so thankful to Shashank Shekharji. When I met him in one of the programs at IIM Udaipur where I was teaching, and sometimes you feel that there is something which hits a chord that, yeah, here is somebody who is very promising, here is somebody who is able to, understand so many good things beyond the capacity of the class. So that is how, we got in touch maybe I was a teacher there, but as I found that he is a very person coming from a very intellectual background, and that is how when he approached that he wants this program to be done online for every one of you, I thought इससे बढ़िया क्या मौका हो सकता है कि हम आप सबसे बात कर पाएं. So definitely, definite beautiful proud privilege which has been facilitated today, and I take this opportunity to thank all the organizers and definitely all the people, those who are present here. Resilience. Now, जो हमने आज जिसके ऊपर बात करने की हमने पहल करी है या हम जिसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, this is such a subject which has become very relevant today in the pandemic scenario. जनवरी 2020 तक सब कुछ ग्लॉसी था, शाइनी था, सुंदर था, और अचानक से चीजें बदली और हम लोग को दिन में तारे नजर आ गए. सच पूछा जाए तो सबको दिन में तारे नजर आ गए. जैसे ही लॉकडाउन होने शुरू हुए, हम घर के अंदर बंद होना शुरू हुए. कहाँ से किस तरह की प्रॉब्लम्स ने हमें घेरा, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते. So it was like, something has
dropped from the sky on your head, and you are all thinking that what is this? From where it has come? And how powerful is the nature? How powerful is the entire galaxy? And how tiny, how minimal you are. You are so vulnerable. हम सोचते हैं, हमने इंसानों ने सोचना शुरू कर दिया था कि हम तो खुदा हो गए, लेकिन एक मिनट में एक छोटे से जो आंखों से देख भी नहीं सकते ऐसे एक जीवाश्म ने, ऐसे जीवाणु ने हमारी जिंदगी बिल्कुल उलट पलट करके रख दी। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, the moment this thing happened and everything was closed, lockdowns were there, travels were closed, all your holiday plans came down, everything was shut. There was a scare, there was a fear, there was nothing which you could have done to go out, to meet people, to marry, to get things done, to go to the shopping malls or movies or pictures or picnics or whatever you wanted. Everything came to a grinding halt, including the economy. 3 करोड़ तो लेबर्स बेचारे सड़क पर थे और कई लोगों के फाइनेंसेस की हालतें खराब हो गई, पंक्चर हो गए, और बहुत सारे यूथ जो क्लासेस अटेंड कर रहे थे, ड्रीम कर रहे थे कि वी वुड गेट अ जॉब. Entirely the dynamics have changed in the market. And this pandemic has also brought an equalizer. ये एक ऐसा, इसने सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया, ना अमीरों को छोड़ा ना गरीब को, ना बिजनेसमैन को छोड़ा ना नौकरी पेशा लोगों को, ना औरत को छोड़ा ना आदमी को, ना बच्चे को ना बूढ़े को. Everybody got, some way or the other way affected by it. सबको, even पशु पक्षी पृथ्वी जलवायु हर चीज को इसने अफेक्ट किया किसी ना किसी तरह, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, और नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव बहुत कम चीजों. तो ऐसे में आपको मैं एक डेटा बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस पैंडेमिक टाइम में, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ काउंसलर, I was helping few governments. They started approaching me, including the government of Kerala, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra. तो मुझे ये समझ में आया कि they were registered complaints on psychological disturbances जो पिछले 3 साल में जिसका डेटा था 12-13 हजार कंप्लेंट्स का, मानसिक अवसाद और स्ट्रेस और टेंशन और मेंटल डिसऑर्डर्स का सिर्फ 12,000 3 साल का डेटा था. और हमारे हेल्प सेंटर में इन 3 महीनों के अंदर, पिछले 3 महीने नहीं कह रही हूँ, पैंडेमिक जब शुरू हुआ मार्च 20 के बाद से और जून 20 के अंदर we got 1,99,000 calls having disturbances, feeling stressed, thinking I want to commit suicide, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरे चारों तरफ अंधेरा है. एंड उसमें से 32,000 कॉल्स बच्चों की थी जो 16 साल से नीचे थे. आप इस डेटा को अगर समझ, खतरनाक इंडिकेशन है कि हम, हमारी पेशेंस, हमारी मेंटल बैलेंस, हमारी बहुत सारी ऐसी जो कैपेबिलिटीज अंदर हैं जो हमें स्ट्रेंथ देती हैं, जो हमें मजबूत बनाती हैं, कहीं ना कहीं हम उस मजबूती को खोते जा रहे हैं. और इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया कि भाई इस चीज के ऊपर बात की जाए बच्चों से. और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, टू बी रेजिलिएंट, टू बी हैविंग पेशेंस, हैविंग द बैलेंस. एक तराजू लेकर के अगर हम देखें तो वो उसमें दोनों पलड़े बराबर हों, यानी आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपकी स्कॉलरली लाइफ है, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड. बट कहीं ना कहीं हमने इस बैलेंस को खोने की शुरुआत कर दी है, और इसीलिए आज हम रेजिलियंस की बात कर रहे थे. ये तो मैंने अभी आपके लिए सामने कॉन्टेक्स्ट सेट किया. तो आई होप इस पॉइंट पर अभी किसी के पास कुछ कहने को है तो आप अपने शशांक जी को बता सकते हैं और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैट बॉक्स के थ्रू मैं आप तक पहुंचूंगी
मैं आपकी बातों का जवाब जरूर देना चाहूंगी. I hope everyone is understanding my language, Shashank ji. Yes, of course. You are bilingual. Yeah. So I mean, it's very comfortable for Okay, all of thank us, you. probably. Yeah. And I hope Thank everyone is understanding. Okay, thank you. So if the audience, anyone has any question, please write it in the chat box. And Yeah. thereafter, I will just pose those questions to Mr. Rajeshwari. Yeah. So you could continue, madam. Yeah, thank you, Shashank ji. So this is now I'm coming back to certain research studies taken up. You know, I am, because I belong to human resource and a behavioral area. So you know, there was something which was very important for me कि हम कुछ चीजों को ट्रैक करते हैं, हम बिहेवियर्स को ट्रैक करते हैं पिछले कई सालों से. और मेरी अपनी रिपोर्ट्स भी, डिलॉयट ह्यूमन ट्रेंड रिपोर्ट्स भी, केपीएमजी की स्टडी होती है, मैकेंजी की स्टडीज होती हैं. तो हम यूथ को बराबर हमेशा, मतलब यूथ का मतलब क्या है वो भी मैं बता दूं, 16 से 46 साल तक के, 16 to 46 ईयर्स तक के जितने भी लोग होते हैं, वो पढ़ रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे जैसा भी हो. तो देयर इज एन एंटायर ग्लोबल सिस्टम वेयर वी डू कंडक्ट रिसर्च ऑन द बिहेवियरल पैटर्न चेंज. तो जैसे उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दे सकूं, टुडे लाइक इन दिस मंथ I would be completing my 50 and I would be entering into my 51. हम 51 साल के हो जाएंगे या 51वां बर्थडे मनाएंगे, 50 कंप्लीट हो जाएंगे, 51 में एंटर हो जाएंगे. तो जब हम लोग अपने 20-25 साल में थे, जब हमने अपनी बिहेवियर की स्टडी शुरू करी, तो at that time the generation gap was called, when it was somebody who is elder to me, 28 year. 28 साल मुझसे कोई बड़ा है तो यू नो इट वुड बी, एक जनरेशन बदल गई, एक जमाना, एक युग बदल गया, सोच, मेंटालिटी बदल गई, सोचने का तरीका, नजरिया बदल गया. तो 28 साल होता था. जब तक हम पढ़ के बाहर आए, करीब 30-35 साल के हुए, नौकरी अच्छे करने लगे, सब कुछ हो, 35 साल के जब हुए तो ये पता चला ये गैप जो है वो कम होकर के 14 साल हो गया. यानी अगर कोई मुझसे 14 साल बड़ा या छोटा है तो हम अलग अलग जनरेशन में कहलाएंगे. एंड यू वोंट बिलीव, टुडे इट इज 2.5 years. 2.5 साल, यानी कोई 2.5 साल आपसे बड़ा या छोटा है तो एक नेक्स्ट जनरेशन हो गई, क्योंकि आपकी थॉट, आपके सोच का नजरिया, आपकी इंटरेस्ट, आपका साइकोलॉजी, the way you deal in things, everything changes. 2.5 years. Or dangerously this is going towards even getting reduced. जहाँ पे 1-2 साल भी आगे पीछे कोई होगा तो कहेगा तू अगले जनरेशन का, भैया तेरी मेरी नहीं बनती. तो आप सोच लीजिए, जो हमारे जैसे लोग हैं, हम कितने सारे जनरेशंस के साथ में काम कर रहे हैं, या आप लोग जो यंग हैं, यूथ हैं, वो आप कितने सारे ओल्डीज के साथ में, ओल्डीज के साथ में आपको डील करना पड़ता है. माँ बाप भी आपके लिए बहुत ओल्ड है उस हिसाब से, तो है ना. जहाँ 2.5 साल के गैप में एक जनरेशन बदल जाते हैं तो आप अपने मम्मी पापा को कहते हैं तुम पुराने हो गए, 5-6 जनरेशन पुराने, कहीं कौन सी सोच है, कौन सी जमाने की सोच है. मेरे भी बच्चे मुझसे कहते हैं. So this becomes a phenomenal difference in the family, in the society, at the workplace. Now what I'm coming towards is, this was just an example. So according to our behavioral study research, कहाँ पे कुछ चीजें जो है वो कम हो गई. तो या मैं आपको बताऊं, 5 साल पहले लिसनिंग स्किल्स, यानी सुनने की कला 18वें नंबर पे थी. पहले लिस्ट में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन या इस तरह का था, लेकिन लिसनिंग वाज 18th स्किल थी. हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है. यू वोंट बिलीव, लास्ट ईयर से लेके इस साल की रिपोर्ट जो मार्च में आई है 2020 की, लिसनिंग हैज बिकम नंबर 1 स्किल. There is a lack of listening skill predominantly from the age 16 to 46. People have lost the listening skills. सुनना. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, there is a difference in hearing and listening. बहुत आवाजें सुनाई देती है हमें, आसपास बहुत सारी चीजें सुनाई देती है, तो वो थोड़ी सुनना हमारा खराब. कान अच्छे हैं. Listening is to understand, to respond, to revert,
to be engaged in that particular thing, which is mindful listening. That is number one thing which humankind has lost in the youth, जो बहुत कम हो गई. तो लिसनिंग पावर मतलब सुनाई देता है लेकिन हमारा मन नहीं है सुनने का, या 2 मिनट 4 मिनट होते हो गया बस खत्म. I don't want to get engaged into it. So this skill has gone down like anything. The second thing which has increased, listening कम हुई है, जो increase हुआ है वो हुआ है aggression. Aggression has gone up. हम बहुत short tempered हो गए हैं चीजों के, बहुत जल्दी aggressive हो जाते हैं, बहुत जल्दी react करते हैं. मैं आपको बता दूं, there is a difference between response and reaction. तूने एक मेरा, दो मैं तेरे को मार, तुमने एक किया, चल मैं तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ, या इसने, मैं लड़की हूँ, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ला मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती. You know, everybody is having that. I am something. I can show. I can do. I can, tear you apart if the chance is given. एग्रेशन होना चाहिए. लीडरशिप के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन एनीथिंग बियॉन्ड अ लिमिट, अति हर चीज की बुरी है, अति तो अमृत की भी बुरी है. तो यहाँ पर ये एग्रेशन जो है वो एक अति की लिमिट को छोड़ करके आगे बढ़ गया है. एग्रेसिवनेस, आप देखो ना, कोई, आई सी इट, you tell me if I'm wrong. When I am driving on my road, somebody tries to overtake me, I will also try to pump, I will go behind. So this aggression is seen everywhere. कोई एक लाइन में कोई आगे चला गया, किसी को ज्यादा जरूरत है, तो आप में टॉलरेंस नहीं है, तुरंत आप कहेंगे ए भाई चल पीछे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी क्या प्रॉब्लम. हमने एग्रेशन को हमारा एक फॉर्म बना लिया है. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायमेंशन. मैं इन सब चीजों को बांधूंगी पीछे. तो पहले लिसनिंग, सेकेंड मैंने बताया एग्रेशन. थर्ड थिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भारतीयों के लिए, वी इंडियंस, इट इज एब्सोल्युटली फिटिंग हियर दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग फेलियर. असफलता को पचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है. असफलता को पचाना, गेटिंग, dealing with your failures, accepting that you can fail. उसका रीजन मैं बताती हूँ, बच्चे लोग आपके अंदर नहीं है. उसका रीजन है आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके स्कूलिंग. बिकॉज इन आवर सोसाइटी हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा फर्स्ट आए. उसके लिए ट्यूशन लगाएंगे, उसको कहेंगे अरे उसको देख वो कितना बढ़िया कर रहा है, उसको देख. हम we as a parent have been comparing everybody around this world. और वो देखो उनका बच्चा तो भैया यूएस जाके पढ़ रहा है, मेरे बेटे के लिए भी मेरे को जाना है. अरे come on, every Tom, Dick and Harry is not same. We are not similar. हम हर एक बंदा यूनिक है, लेकिन हमने सक्सेस का पैरामीटर बनाया अच्छी नौकरी, बढ़िया कार, बढ़िया बंगला, बढ़िया कपड़े, बढ़िया XYZ. And we always have given weightage to success. We have not given weightage to happiness. एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रही हूँ. Success has become a parameter of a good living. Happiness is not. इस वजह से जो acceptance to failure है, इतने नाजुक बच्चे हो गए हैं, जरा सी चोट लगी नहीं कि बिखर जाते हैं, जरा सा फेलियर हुआ नहीं कि डिप्रेशन में. अरे जिसको पूछो उसको डिप्रेशन है भाई. ये कौन सा युग में जी रहे हैं हम. बड़े बड़े तूफान गुजर जाते हैं और हम तो ऐसे नहीं है, या XYZ तो ऐसे नहीं है. लेकिन इस चीज में, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा भरण पोषण, हमारे माँ बाप ने सक्सेस के पीछे दौड़ बेटा, रैट रेस में वी हैव बीन एंगेज्ड. And that is why the resilience is questionable. The acceptance to failure is almost zero. इसलिए आए दिन
सुसाइड के मामले आए दिन, डिप्रेशन के मामले आए दिन, दवाइयां खाने के मामले आए दिन, ड्रग्स लेने के मामले, क्या क्या नहीं देख रहे हैं हम। एक्सेप्टेंस टू फेलियर। और मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी जो अभी थोड़ी देर पहले थी, और इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगी, शायद शेखर जी भी इस चीज को जानते हैं कि मेरा बेटा जो है वो वर्ल्ड में बैम्बू स्ट्रक्चर साइंटिस्ट खाली 33 लोग हैं उसमें से एक है, बहुत जीनियस है, बहुत होशियार है, कभी फर्स्ट नहीं आया क्लास में, मैंने कभी उसको नहीं कहा कि तू फर्स्ट, but I knew that he is having very high IQ, so I supported him in everything. And when he said that I am going as a structural engineer for low cost housing, my husband was all against and he said कि तेरी earning क्या होगी? उसने कहा पापा I will earn peace. I don't want glorified life, but I want peace. And believe me you, he is that person who is really earning peace. He is so comfortable in his living. With minimum living, he is making best of his life. And I'm so happy for him that he could choose this kind of life, because the kind of freedom we have given to choose has made him so happy. He is today living with nature. He has his own bamboo house. He lives in nature. He is having his goats. उसके पास बकरियां हैं. उसके पास अपना vegetable garden है. He does everything organic, and he is living such a beautiful life. He is so young despite that. Yeah. So this is one very important thing which you all need to understand कि failure, success का parameter के पीछे भागेंगे तो जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी. Happiness, inner content, what I am doing, is it good for me? Is it good for society? Is it good for nation? Am I happy? Is my family happy? If all these things are there, then you may say that, yeah, you are contributing that. Okay. So next important thing is what is, lacking in the youth again is they are doing a lot of procrastination. टालना, हिंदी में जिसको बड़े इजी शब्दों में कहते हैं टालना. ठीक है यार, कल आज तो बड़ी मेहनत हो गई, 1 घंटा पढ़ाई क्या कर ली कि क्लास में बैठे 3 घंटे पढ़ाई हो रही है, थक गए. हाँ, दिस इज द एक्सप्रेशन आई सी. मैं सोचती 3 घंटे में थक गए. कम ऑन, आप सिटिंग है, यू आर लिसनिंग, यू आर डूइंग नथिंग एंड यू से थक गए. हमारे जैसे भैया, मेरे को 31 इयर्स हो गए हैं, मैं किसी भी दिन 20 घंटे से कम, 1 घंटे में 1 मिनट कम नहीं काम किया. मेरा हो सकता है आई एम एक्सेप्शनल, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से भगवान ने बनाया होगा हमें, लेकिन आप परम यूथ, आप तो अपने परम चरम युवा में हैं और आप ये कहते हैं कि थक गए. किस बात के थक गए भाई? फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, सबको कॉन्सेंट्रेट करिए और फिर बैठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेके, ये कल ऐसा करेंगे, वाह वाह, ये हो रहा जिंदगी में. और फिर जब सत्तू का मटका फूटता है तब लगता है भैया पीछे रह गए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सपने देखें, लेकिन उसके लिए टाला टाली करना छोड़ के स्टार्ट. एक विवेकानंद जी हमारे, मेरे बड़े, मैं उनको बहुत मेरा बड़ा गुरु मानती हूँ. उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, अराइज अवे, उठो, जागृत हो और काम करो. और मैंने उसमें एक अपना शब्द जोड़ा है, मेरी कोई कुव्वत नहीं है. अराइज अवेक एंड एक्ट. कार्य करिए, कार्य करने से ही सिद्धि प्राप्त होगी, तभी काम होगा, तभी यश होगा, तभी मेहनत का पसीना जब छोड़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रोक्रास्टिनेशन चलने दो, जाने दो, हो जाएगा. आज नहीं हुआ कल हो जाएगा. कौन सी धरती फट रही है, कौन सा आसमान टूट के गिर रहा है? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक. एवरी डे यू स्टार्ट विद अ न्यू एक्सक्यूज. अंदर मन के दर्पण में झांक कर तो देखो that this is something which we have been doing for ages and that's why we are way behind than so many others. मैं रैट रेस में भागने के लिए मना कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए कि आराम, चलो भैया मैं तो बहुत खुश है, क्या कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं तरसों कर लेंगे. ये जिंदगी भी कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है. आप क्या वैल्यू कर रहे हैं? भूमि पर भार बढ़ा रहे हैं. It is very important for each one of us to stop procrastination. टाला छोड़ के, टाला टूली छोड़ के
काम पे लगिए, काम से ही आपकी पहचान है। तो काम तो करो, पहले थोड़ा तो करो, मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब एक और जो चीज जो बता रहे हैं, फिजिकल फिटनेस हैज गॉन डाउन। ओबेसिटी बढ़ रही है, फिजिकल फिटनेस के कहीं अते पते नहीं है। खाना पीना कुछ भी चला जा रहा है, ना खाने का टाइम है ना कुछ और करने का समय है। And again, I would like to give my example. In age, when I was 34, I met with a very, very serious accident. दोनों घुटने ऐसे टूटे कार एक्सीडेंट में कि डॉक्टर ने कहा जिंदगी भर चल नहीं पाई। और उस डॉक्टर को मैंने कहा मैं 9 महीने के अंदर एक पहाड़ चढ़ के दिखाऊंगी। उन्होंने कहा मजाक करती हूँ, मैंने कहा मजाक नहीं करती हूँ, मैं मेरा ध्यान रखना जानती हूँ। यू वोंट बिलीव, 9वें महीने में नहीं किया, 10वें महीने में उसी डॉक्टर को मैंने कहा कि प्लीज आइए, मैं पहाड़ चढ़ने जा रही हूँ आज। और 610 सीढ़ियों का नीमच ममता जी का मंदिर है, वो मैंने चढ़ के दिखाया। 1.5 घंटा लगा मुझे, जो मैं 15 मिनट में अदरवाइज चढ़ लेती थी। और आज इस 51 साल की होने वाली इस महिला को आप थोड़ा सा ये ध्यान से देखिए कि मैं 8 किलोमीटर रोज रनिंग करती हूँ एवरी डे। इस 20 घंटे में मेरा 1 घंटा 12 मिनट 72 मिनट रोज मेरे 8 किलोमीटर रनिंग करने में जाते हैं। फिजिकल फिटनेस, because that is the key where your mind also starts working. फिजिकल ढीले हो गए, काउच पोटैटो हो गए, नीचे हो गए, धीरे हो गए, sorry dear, you all you go down. It is very, very important to remain physically fit, healthy, smart, agile, active. एक और चीज, we are having lot of intolerance to diversity. जितनी विपन्नताएं हमारे आसपास हैं उन्हें हमने एक्सेप्ट करना कम कर दिया है। हमें लगता है मैं, मेरा, मेरी जाति, मेरा समाज, मेरा धर्म, हमें मैं के अलावा दिखता ही नहीं। वी, ME, अगर अंग्रेजी में आप कैपिटल में ME लिखें, उसको उल्टा कर दें, उसका रिफ्लेक्शन देखें कांच में, तो WE आपको दिखाई देगा। वी, मी कहाँ लिखा हुआ है, अगर उसको उल्टा कांच में देखेंगे तो आपको WE दिखाई देगा, मी दिखाई देगा, मी और वी। और मैं मानती हूँ कि मेरे बियॉन्ड, आई हैव टू थिंक बियॉन्ड मी। एम्पैथी, इसका मतलब ये है कि हमने एम्पैथी कम कर दी है, दूसरों के प्रति सोचना हमने कम कर दिया। पहले मैं, मेरा इंटरेस्ट, देन बाकी जाए भाड़ में। This attitude is also killing the youth. It is also making the entire world go in a very, very different way. So it is very, very important for us to accept others, understand others, live with others, have tolerance to certain things. Then only you co-create a good world around you. Co-creation होता है, कोई भी यात्रा अकेली नहीं होती। परिवार में एक जने के बीच में मन मुटाव है तो पूरे परिवार का लक्षण बिगड़ जाता है। एक दिन आपसे कोई वर्क प्लेस पे बुरा बोल देता है, कॉलेज में बुरा बोल देता है, तो पूरा दिन आपका बिगड़ जाता है। फिर आप घर पे भी जाके चिड़चिड़ करते हो, या आपके दिमाग में वो चीजें बॉयल होती रहती। तो हम, हमारी ये जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, इट्स अ को क्रिएशन। सो एवरीवन हैज टू सी अदर्स, देयर पर्सपेक्टिव। ये हमारी एबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक और चीज हमारी जो कम हो रही है वो ये है कि we are losing on patience. सब कुछ कल चाहिए, मैगी नूडल्स की तरह 2 मिनट में सारा काम चाहिए। जब मेरा काम हो तो भैया 2 मिनट में होना चाहिए। जब तुम्हें कोई काम है तो कर लेंगे, आज कल कर लेंगे। You know, this is something which you need to understand. है ना, कोई अभी लिख रहा है PUBG बैन कर दिया। PUBG बैन करे भैया, तो सरकार के डिसीजंस है, क्या बैन करना है, क्या रखना है। लेकिन मेरी जिंदगी तो मेरे हाथ में है। आपको पता है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे IIM में। ये बात है पिछले नवंबर की, 2019 के। और हमने कहा कि भैया किसका कितना स्क्रीन टाइम है, चलो चेक करते हैं। 14 घंटे एवरेज।
आपको फुर्सत ही नहीं है बाहर की हरियाली देखने की, आपको फुर्सत ही नहीं है कुछ और करने की। आज तो मजबूरी है, हम ये सेमिनार भी वेब पे कर रहे हैं, इससे हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा है, मेरा चश्मा बड़ा हो गया है, शेखर जी देख ही रहे होंगे। बट otherwise there are so many good things to do. Why we are hanging all the time? क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही सारी ज्ञान की भंडार है क्या? गूगल बाबा ही सब कुछ देंगे? एक जमाना हुआ करता था 10-10 हजार फोन नंबर याद रहते थे। इट इज सो 10 to 4 क्लास हो रही है जूम के ऊपर। तो वी हैव टू मेक लाइक इफ आई एम डूइंग 10 to 4 क्लास ऑन जूम, आई हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे आंखों की, दिमाग के रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस हर क्लास के बाद करनी है। आंखों का मूवमेंट, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस तरह से घुमाना, आंखों को बंद करना, उसको एक अपने हाथों की गर्मी दे करके 2 मिनट इसको रिलैक्स करिए। बट नहीं साहब, आप क्यों करेंगे? आप तो तुर्रम खान है, आप ये सब करेंगे तो कोई और हंसेगा, और आपको दूसरों की हंसने की परवाह है, खुद की परवाह नहीं है। आपको अगर चेयर पे बैठ करके अगर आप 2 मिनट ऐसे रिलैक्स कर लें, बजाय कि उस व्हाट्सएप को उसी वक्त देखने के लिए जूम क्लासेस के बीच में थोड़ा सा नेक को इधर घुमाइए, थोड़ा इस तरह से करिए, थोड़ा आप अपने हाथ पांव ढीले छोड़ करके निष्पन्द आसन में बैठ जाइए। कौन मना कर रहा है आपको ये करने के लिए? पर नहीं, करना नहीं है, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी दैट आई एम एंगेज्ड ऑल द टाइम ऑन दैट ब्लडी नॉनसेंस द स्क्रीन टाइम। मजबूरी में पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी में से वो चीज भी हाथ से निकल गई और इसीलिए मैं तो सारा टाइम यही कर लूं। तो वी हैव टू ड्रॉ लाइन्स फॉर वॉट एवर वी डू। देर आर you are not even understanding ki who is my role model, what is their work, how much time you are spending on what। एक दिन अपने डायरी लिखिए कि एग्जैक्टली 7:10 पे मैं उठी, 7:20 तक मैंने वॉशरूम वगैरह जाके ब्रश वगैरह करके मैं बाहर आ गई, फिर मैंने 7:35 तक अखबार पढ़ा, फिर मैंने 7:40 तक मैंने चाय पी या ये काम किया। आप एक बार वो 10-10, 15-15 मिनट के गैप में आपने क्या किया, डायरी में एनालॉग अपना आप डालिए, डायरी में लॉग बुक बनाइए एक दिन की, जो वाकई में रोज करते हैं वैसे ही करिए, और देखिए कि where are your time wasters, where are your time savers, what is that which you have done in this 24 hours which is meaningful, and what is that in 24 hours that was useless। useless का मीनिंग समझिए, प्लीज यूज इट लेस, इट इज यूजलेस। वो आपके काम का नहीं है तो उसको यूज लेस। So there are so many good things around you. Look inside you, look outside, look around, look beyond। कोई पीछे तो नहीं छूट गया, कोई साथी तो नहीं रह गया, मेरे घर में तो कोई नहीं है जो कहीं किसी तरह से परेशान है, क्या मैं उसका हाथ पकड़ूं, क्या मैं किसी के पास बैठूं 2 मिनट बात करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि दिन में एक बार किसी एक जने के चेहरे पर मेरी वजह से मुस्कान आए। करके देखिए, अच्छा लगता। पर्टिकुलरली आप करके देखिए, यू वुड रियली फाइंड द लाइफ टू बी वेरी मीनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज जानी है, सीखी है, प्रैक्टिस करी है, इसीलिए बता रही हूँ। हमारे देश के यूथ इतने अच्छे हैं, हमारे युवा इतने अच्छे हैं, हमने उनको दिशा नहीं दी है। एक बार उनको दिशा देके देखिए। जैसे मेरे जो मेक अ डिफरेंस में जो बच्चे काम करते हैं, उनमें एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि 2018 में फ्लड आए थे केरला में। उसके पहले एक बच्चा था 12th क्लास में, जब तो उसकी टीचर ने कहा कि माँ बाप ने बिगाड़ के रखा है, इतना गंदा लड़का है, पूरे स्कूल को खराब करके रखा है, एकदम नालायक बच्चा है। तो मैंने उनको मेक ए डिफरेंस की कहानी बताई कि भैया मेक ए डिफरेंस में तुम बहुत सारा काम कर सकते हो, कुछ अच्छे लोगों के लिए। मेक अ स्माइल, मेक अ गुड थिंग वन डे, वन इन एवरी डे, मेक इट अ हैबिट इन योर लाइफ। उस बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या जागृत हुआ उस दिन कि उसने कहा मुझे मैडम मेक अ डिफरेंस में काम करना है। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे ऐसे तरह से लोगों के पास बैठिए, हॉस्पिटल में जाइए, 10 मिनट जो कोई नीडी है उससे बात करिए,
कोई अंधा है, बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई ट्रैफिक लाइट पे जा रहा है, ट्रैफिक लाइट पे जो सिग्नल पे खड़ा है धूप में गर्मी में, उसको ले जाके एक बोतल पानी पकड़ा के आ जाइए और कुछ नहीं तो छोटे छोटे काम करके हैप्पीनेस ढूंढिए. दिस बॉय आफ्टर 3 years 2018 में, मैं बता नहीं सकती हूँ कि फ्लड में उसने 44 लोगों की जान अकेले बचाई. एक बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को तैर तैर के जाके लेके आता रहा. 45वें बंदे को बचाते बचाते खुद बह करती उस बच्चे की मृत्यु. मैं उसको सीमा पार के उस प्रहरी, उस सैनिक से कहीं कम नहीं मानती हूँ, क्योंकि he found the purpose in his life. जिस टीचर ने वीडियो जारी किया था कि ये मेरा सबसे नालायक बच्चा है, उन्होंने ऑन टीवी आके कहा मेरी जिंदगी का सबसे लायक बच्चा ये. मैं कहते हुए मेरे आंख में आंसू आते हैं कि जब when you give some purpose to somebody, the life changes. If you give them engagement socially, they will stop engaging themselves anti-socially. ये मेरी टैगलाइन. यूथ के पास बहुत पावर है, उनको सही कारण से उनका रुझान कहीं और करने की आवश्यकता है. अगर वो आप कर पाते हैं, इससे बड़ा जिंदगी में कोई सुकून का काम नहीं है. मैं ये नहीं कहती कि आप दानदाता बन जाइए, कमाइए नहीं, पैसा मत कमाइए, सिर्फ समाज सेवा में लग जाइए या सिर्फ पॉलिटिकल लीडर बन जाइए. नो, एम्बिशन पैशन एक अलग जगह है, सेवा अलग जगह. 10 मिनट जिंदगी के रोज के आप किसी के एक मुस्कान लाने के लिए स्पेंड करिए. 10 मिनट मांग रही हूँ एवरी डे. किसी का थैला उठा के रख दिया, किसी का भारी सामान उठा के इधर उधर रख दिया, कुछ नहीं तो मम्मी को चाय बना के दे दी. अरे कुछ एक करके तो देखो, बहुत अच्छा लगता है यार. सबको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. किसी 10 मिनट कोई नीडी बच्चे को पढ़ा दिया, किसी को नहीं कोई समझ में आ रहा है उसका काम करके दे दिया, किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बना हुआ है उसको कार्ड बना के दे दिया, वोटर आईडी बना के दे दिया. जब किसी को जरूरत पड़ी तो इकट्ठे किए खिलौने और जाके अनाथाश्रम में दे आए. अपने घर से आस पड़ोस से चश्मे इकट्ठे कर लीजिए, किसी आई डॉक्टर को दे दीजिए कि कोई गरीब आए तो इनको चश्मा बना के आप दे देना. ये चश्मा, किताबों का बैंक बनाइए, नेकी की दीवार बनाइए. जहाँ पे आपके काम का नहीं है लेकिन किसी और के काम आ रहा है तो वो आप वहां पर हैंग करके आ जाइए, वो ले जाए, कोई भी ले जाए, करके तो देखिए. So there are so many good purposes around life. You would see a beautiful life ahead when you start thinking about others, beyond yourself, beyond your ego. Let ego go. ये छोटे छोटे काम हैं, जब हम करते हैं तो ये कोई फिलोसॉफिकल टॉक नहीं है. मैंने इसी तरह की जिंदगी को जिया है. जब मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी तो 12 साल तक मुझे खाने को नहीं था. जिंदगी के पहले 12 साल भूख के मारे, और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया. बहुत सारी परेशानियों का सामना किया. मेरे ऊपर कितनी बार जानलेवा हमले हुए हैं. 3 बार मुझे लोगों ने मारने की कोशिश करी, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन एक बार लोगों को लेके चलती हूँ तो 10-10, 5-5 लाख लोग आ जाते हैं. पेट पूरा चीर दिया, 97 स्टिचेस हैं इधर से उधर, लेकिन किसी चीज ने मुझे कभी नहीं रोका कि होगा. मुझे जो करना है मुझे करना ही है. अगर परिवर्तन, if I cannot be the change, how can I change others? I have to change something in me today. Then only I can think something to be taken up tomorrow. So with these words, I end my presentation today, and really be role model. You be your own role model. Think that life is beautiful and you only can make it more beautiful by doing something good for yourself, for society, for nation, for your profession, for your learning, for your betterment, for your happiness, not for only success. Thank you so much. Any questions there? Yes, thank you, madam, for a very insightful and motivational lecture. As expected from us, you have in fact talked on very important dimensions of life. It was in fact, I don't know how much did I listen, but then you talked about active listening, how to reduce aggression. You talked about the benefits of failure and how to accept failure in life. In fact, I would like to एक वाक्यांश मैं आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ कि I
once I went to my sister's place early in the morning. I reached there in Patna. It was around 5:30. तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो एक 8 साल की उनकी बेटी है. She in fact snatched mobile from my hand and she started in fact playing that mobile. Generally she is in the habit of snatching mobile. तो मामा आया है तो मोबाइल खींच ली और उसके बाद वो अपना गेम्स जो है मोबाइल पे खेलने लगी. उस समय वो जो 8 साल की बच्ची है, she taught me. What did she teach me? वो खेलते खेलते थोड़ी देर के बाद she started jumping, shouting for joy और बोलती है, चिल्ला रही है, मैं तो हार गई, मैं तो हार गई, मैं तो हार गई. Actually she taught me at that time the acceptance to failure, the benefits of failure, how to celebrate failure. Generally we celebrate in fact success, but that little girl, 8-year-old girl, taught me how to celebrate even failure. तो बहुत अच्छा आपने फेल्योर पर बात की. आपने बात की पीस एंड हैप्पीनेस पे, फ्रीडम टू लिव हैप्पीली, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन व्हिच इज द थीफ ऑफ टाइम, इस पे बात की. देन यू टॉक्ड अबाउट फिजिकल वेलबीइंग. तो ये फिजिकल वेलबीइंग जो है ये बहुत बड़ी बात है मैडम, क्योंकि मेरा जो 4 डायमेंशंस लाइफ का है, एक है PQ, एक है आपको IQ, एक है EQ और एक है SQ. तो फिजिकल वेलबीइंग जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या खाते हैं, कैसे अपने शरीर को अच्छा रखते हैं, तो फिजिकल वेलबीइंग इट इज वेरी, क्योंकि फिजिकल वेलबीइंग है, बॉडी से अच्छे हैं तो दैट विल लीड टू द हैप्पीनेस इन योर माइंड. और दूसरी चीज जो है IQ, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, क्योंकि कल तक हम कितना जो कॉग्निटिव स्किल है और जो डिफरेंट स्किल्स है उससे बेहतर आज हम कर पाए कि नहीं, इसको ये देखना है हम लोगों को. दैट इज योर इंटेलेक्चुअल क्वोशंट. और इमोशनल क्वोशंट जो है EQ, ये तो बहुत बड़ी चीज है कि आपने एम्पैथी की बात की. आप यू आइडेंटिफाई विद द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात की पर्पस ऑफ लाइफ. तो जो SQ है, मैं SQ दैट इज स्पिरिचुअल क्वोशंट. मेरा स्पिरिचुअल क्वोशंट से कुछ भी लेना देना नहीं है कि हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है और फॉर दैट मैटर कोई भी रिलीजन है. मेरा ये मानना है, एक मैं एग्जांपल देता हूं कि 2 डॉक्टर है. एक डॉक्टर है जो बहुत पैसे कमाता है, उसके बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं, वो जो है वो डॉक्टर जो है उसके पास फ्लीट ऑफ कार्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं. और दूसरा जो डॉक्टर है उसके पास भी सब कुछ है, बच्चे बहुत सक्सेसफुल, पैसा बहुत कमाता है, लेकिन उससे पूछा जाता है व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, तो वो कहता है माय पर्पस इन लाइफ इज टू इरेडिकेट कोविड-19. My purpose in life is to eradicate chicken pox. My purpose in life is to eradicate any disease. तो जब आप अपने निजी हक से बाहर देख करके देखते हैं, if that becomes your purpose in life, that gives you ultimate happiness. So I concur with your views, whatever that you spoke, and it was really, really delightful. So I would ask, in fact, the audience to ask a few questions from Professor Rajeshwari. Please, आप जिनको भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अनम्यूट कर दीजिए and please ask. Okay, I see a very interesting dimension. Swami Nandan ji ने लिखा है. Yes. कि the attributes that has been mentioned by you are prerequisite for happy life, but these are not a part of curriculum. Hence, they are not taught and parents are too lack the vision. तो इनका मैं व्यू में आपको बताना चाहूंगी कि जहाँ भी मैंने पढ़ाना शुरू किया है, there we have added all these things in the curriculum. So nobody should stop you even adding in your curriculum, whether it is engineering, medical, whether it is management, whether it is arts, humanities, law, whichever stream you are studying, soft skills should be a part of the curriculum. If it is not there, please make your voice heard to those who are creating the curriculum. रही बात पेरेंटिंग की, तो चलिए आपके हमारे पेरेंट्स कैसे भी रहे, जब आप पेरेंट बने तो आप ध्यान रख लीजिए. नहीं है तो I have conducted around 317 parenting workshops. So when I do workshops on parenting, I can loop you in. Anybody of you who wants, so definitely you can join in and can enjoy the benefits of that and can understand how delicate
the parenting is. It is not that as simple. हमें साइकिल सीखनी होती है, हमें स्विमिंग सीखनी होती है तो हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स बनने के बाद पहले कोई भी नहीं जाता कि मुझे पेरेंट्स कैसे बनना, अच्छा पेरेंट कैसे बनना. You don't learn the skill. You think that it is naturally inside you, whereas I say no, this is an art you have to learn. You definitely need to learn. और soft skill उसका एक part है, तो please definitely. एक और क्वेश्चन पूछा है, does the new education policy take into account such psychological crisis? It has to take. हम लोगों ने अभी लिख करके भी दिया है कि मेंटल डिसऑर्डर्स को भी उसके अवेयरनेस के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम साइड बाय साइड करें. टीचर्स को स्मॉल स्कूल स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई डिसलेक्सिया है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने लिखा है. बहुत इम्पोर्टेंटली राजेश जी ने कहा है कि योगा एंड मेडिटेशन वो करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक अगर और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले. मैं कुछ देख पा रही हूँ, कुछ नहीं देख पा रही हूँ, तो फिर से लाइट चली गई है, यहाँ पे बिजली चली गई है. Yes, I mean, audience, yes. Please ask question. Yes. Hello. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please, here is Dr. Achintya. Here is Dr. Achintya. He is the principal of Darbhanga College of Engineering right now. Please, sir. Okay, sir. Good afternoon. Yes. Right now, I was recommend about your staff. Okay. Just a couple of days back, I handed over the charge to Professor Kumar. Yes, I'm really delighted listening and this opinion. Here. The Cobra, madam. Hello, madam. Rajeshwari, you heard this Cobra effect? Hello. No, sir, I am totally unable to hear. आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है कुछ. Your voice, sir, your voice is breaking. Just I'm coming outside because there might be net problem. Okay. Yes, yes, sir. Now yes, sir. Right. Take your time. Yes, sir. Okay. Madam, voice. Madam, I'm just telling you. Normally, this is the tendency in Indians. Okay, grown-up Indians, about the Cobra effect. There is always for the Indians to be aware of the Cobra effect. Have you heard of this Cobra effect? Sir, I am absolutely not able to hear you at all. Hello? I am just able to hear some murmuring sound. Okay. So I think one question I am able to see that somebody, Varun Singh, has posted. I want to say that nowadays OCD and like problems increase day by day. How to resolve it? And also to improve your self-confidence. देखिए self-confidence improve करने के लिए तो you will have to work hard. Reading, writing, building on your skill, you need to do a lot. But about OCD, it all comes through triggers. OCD is nothing but it is a reaction towards certain triggers. जैसे मान लीजिए मुझे OCD है cleanliness का, मुझे सफाई बहुत ज्यादा पसंद है और कहीं पे भी गंदा दिखते हैं मेरे अंदर में तन बदन में आग लग जाती है, मैं चिल्लाने लग जाती हूँ या मेरे को लगता है मेरा दिन खराब हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो. If this is the behavior, this is called OCD. Yeah, I keep on washing my hand 20 times, 30 times, 40 times without any reason. I think मेरे हाथ में कुछ गंदा है. This is OCD. So what are the triggers? Triggers को remove करना जरूरी है. वरुण जी, आप सुन रहे हैं ना? Triggers को OCD के लिए triggers को remove करना जरूरी है. Hello, ma'am. Good evening. My question is Hello, ma'am. Yes, doctor. Yes. Again. नहीं, ये वरुण सिंह का क्वेश्चन का. अच्छा. Okay. Fine, Sasan. ये वरुण सिंह का आपकी आवाज नहीं. Okay, sir. Sir, I will convey this to him. I will convey this to him. Okay, Yes. all right. Then we'll talk. Okay. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you. Any other question from the audience?
प्लीज। हेलो मैम। हेलो। आपने तो पूछ लिया है वरुण, यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड। यस मैम, बस एक चीज मुझे यहाँ पूछना था, इसी वजह से मैंने माइक अनम्यूट किया है। हाँ। क्योंकि ओसीडी के बारे में मैम मुझे 2018 तक कुछ नहीं पता था, ये क्या होता है नहीं होता है, लेकिन इधर फ्यू इयर्स में इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। एक सर्वे के हिसाब से मैंने पढ़ा कहीं, और ये केसेस बढ़ने लगे, वो भी बहुत ज्यादा। और इस पे डे बाय डे बहुत सारा मतलब आर्टिकल्स छपते हैं, तो ये बहुत सारे यूथ में आने लगे। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूछा कि इसको कैसे रिजॉल्व करें, ये मतलब मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है। बिल्कुल नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं कि ओसीडी ही नहीं, सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो एकदम से बढ़ गए हैं, और ये पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ने पर आ गए हैं। उसके रीजन ये है कि हमने द बैलेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअलिटी, यानी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में गैप बढ़ने से मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत सारे आ गए। और ओसीडी के लिए जैसे कहा, इट इज ट्रिगर। OCD is nothing but trigger reaction to something which you do not like from inside. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, I'll just give you OCD और भी चीजों में होता है। जैसे कुछ लोगों को रेड कलर देख लिया तो OCD आ जाता है, कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर एक बात कहते ही वो एकदम जोर से रिएक्ट करने लग जाते हैं। There can be OCD on cleanliness, the OCD can be for some kind of food, OCD can be of some kind of a subject. It can be related with doing something on a regular basis. तो जो भी इस तरह का पेशेंट या कोई भी आपके आसपास है, खुद मान लीजिए खुद भी हो, तो हमें उन ट्रिगर्स को दूर करना पड़ता है। ओसीडी जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, और वो तब बढ़ता चला जाता है अगर हम उसके पास ट्रिगर्स नहीं हटाते हैं। और ओसीडी जब Hello. Yes. Internet connection is there. Yes. I cannot see her now. Professor Rajeshwari. एक बार फोन से बात करो। अमितेश, you speak to her on phone, please. Yes, it was a wonderful listening to Professor Rajeshwari. She highlighted or dwelt on many. I am there. Yes, ma'am. Just in between problem आ गई थी. Yes, I can. Video is not coming, ma'am. Video is not there, although we could hear you, but hello, ma'am. Hello. शशांक जी, मेरे को ना आपकी आवाज भी अब थोड़ी डिस्टर्ब सी आ रही है, और आई थिंक यहाँ पे कोई पावर का इश्यू है। यहाँ पे एट माई प्लेस देयर इज सम इश्यू इन द पावर कट्स आर गोइंग ऑन, क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही है। But then I can hear you. Heavy rain, there is a disturbance. So if you allow me, and if there are no more questions. Okay, madam. Okay. The students will have the opportunity to listen to you once again, and then they will have many questions. So, in fact, you have, madam, you have talked on all the different dimensions of life, and if our students, they pick up one by one these dimensions of life, these values of life, I'm sure they will just hone their skill and they will develop into a very good human being. एक जो बहुत बड़ी बात आपने कही, जो हमारे आज के यूथ हैं, they are losing on patience. तो losing on patience के बारे में जब बात कर रही थी तो अचानक मुझे याद आई, when I was a student there in the university, क्लास चल रही थी, उस समय एक स्टूडेंट ने कहा कि बड़ा बोरिंग हो रहा है 1 घंटा। तो हमारे वो जो टीचर थे, वेरी इरूडाइट टीचर, उन्होंने कहा कि जब 1 घंटे जो है ये जो है आपको बोरिंग लग रहा है, तो ये पूरा लाइफ ही बोरिंग है, व्हाई डोंट यू मेक एन एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो मेरा ये मानना है कि पेशेंस जो है, यस, दे आर लूजिंग ऑन पेशेंस,
they need to develop patience also. So बहुत सारी dimensions से बताया आज, और हमारे बच्चे जरूर लाभान्वित हुए होंगे. And thank you very much, madam, for again illustrating your point of view in the most emphatic way possible. Thank you, Amit, for coordinating the program. Although in fact some internet issues were there, still you could manage to resolve them. I'm really thankful to our chairman, Dr. U.K. Mishra, Chairman BUG, Dr. U.K. Mishra, who listened to Madam probably with rapt attention, and probably when we meet there in the meeting, he would further try to elucidate upon these points of view. I am really thankful to Dr. Achintya, Principal, Darbhanga College of Engineering, who remained with us and became the active listener and participant. I'm thankful to Professor Malik. I could see in the list that he was also there. So, and then again, I thank you all the faculty members, the students who, after listening to Professor Rajeshwari, would become little wiser, would become more skillful, and try to use, all these dimensions of life in their daily, day-to-day life. Thank you. Thank you once again for being with us this afternoon. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you, madam.